क्वेश्चन या फिर एक डिमांड कॉमन थी इन्वेस्टर्स की बिफोर दे ट्राई टू इन्वेस्ट इन अस. ही वाज लाइक कि क्या तुम्हें जॉब लगी है? मैंने बोला हाँ भाई लगी है, प्लेस्ड है दोनों. बट फिर ही सेड वो छोड़नी पड़ेगी, तुम लोग वो ज्वाइन नहीं कर सकते, ये मेरे को लिख के दो. क्या हुआ उन 2 दिनों में, अराउंड 100 स्टॉल्स थे और हर एक स्टॉल एक स्टार्टअप को दिया गया था. सो बेसिकली देयर वर 100 स्टार्टअप्स इन आर कॉलेज कैंपस. कोई आता है बोलता है कि नहीं नहीं ये चलेगा नहीं या फिर नहीं ये तो नहीं है. एक पॉइंट पे हम है जो स्टार्टअप कर रहे हैं, एक इन्वेस्टर है और आईटी कंसल्टेंसी फर्म चलाने वाला है. तो बेसिकली उस पॉइंट पे वो सब लोग थे जो एक स्टार्टअप को चलाने के लिए चाहिए थे. हम सोचे थे कि भाई ये फर्स्ट ईयर के लोग हैं एंड दे डूइंग सच ग्रेट थिंग्स. व्हाट वी डिड इज कि बस 2 दिन स्टॉल पे खड़े रहे, इतने सारे इन्वेस्टर्स और अपॉर्चुनिटीज और फीडबैक्स हमारे पास आए. जो भी महाराष्ट्र में है उनको तो पुणे स्टार्टअप फेस्ट अटेंड करना ही चाहिए उनसे. We recently pitched our startup idea at PSF, the Pune Startup Fest, and it turned out to be a great networking opportunity for us. In today's podcast, we'll be discussing what is PSF, why should one attend such networking events irrespective of his or her profession and occupation, and what did we experience in those 2 days at the fest, and also some funny incidences that occurred with us at the Pune Startup Fest. I hope you enjoy the podcast. Oh, so hello guys. So it's around 11 p.m. here. It's Wednesday night today, and we are here discussing something around startups and another second episode of this podcast series. Today we will be talking about our experiences, our recent experiences in Pune Startup Fest. So Atharva would start with the detailed introduction to what we are talking about, what Clover as a brand started to look upon to at this PSF stuff. So Atharva, I guess you could start now. So PSF, Pune Startup Fest. So basically, it's a fest organized by COEP's incubation center called Bhaus I and E Cell, and PSF is one of the biggest startup fest organized in the city. So basically, where multiple startups, not only the startups run by students, but also by experienced people who have been working on them for the past 2 to 3 years, or the investors also visit the fest for looking out for investment opportunities. And so basically, yeah, it's an event where where the investors and the startup founders come together to exchange knowledge, to get feedback, and to collaborate and work on something to make it a great deal. लाइक जिसका कोई नया स्टार्टअप है उसको कोई एडवाइस चाहिए, तो वो इन्वेस्टर जो स्टॉल्स पे विजिट करते हैं स्टार्टअप्स के, तो उनसे फीडबैक मिल सकता है. या जिनका स्टार्टअप ऑलरेडी तो अच्छा चल रहा है बट दे वांट टू स्केल इट इवन मोर, तो they can ask for fundings from the investors, and then the investors or the startup accelerators and the startup can come together and work in collaboration to make their startup a great success. So this is the basic purpose of Pune Startup Fest. And this year there was a competition organized by our college, which is business plan competition. And in that competition, our team, our startup Clover, won the first prize. So, as a reward, we were offered a stall free of cost at PSF. Basically, to set up a stall at PSF, Pune Startup Fest, you need to pay 3,000 rupees. But because we were the winners of a competition, our college offered us the stall for, free of cost. So yeah, basically today's podcast we'll be discussing कि क्या हुआ उन 2 दिनों में. तो PSF 2 दिन चलता है. इस बार वो 11th जैन एंड 12th जैन को हुआ. सो विल बी डिस्कसिंग क्या हुआ इन दोनों में, क्यों PSF एक अच्छा फेस्ट है और उसके व्हाट आर द एडवांटेजेस, और हाउ डज इट बेनिफिट द विजिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड द स्टार्टअप फाउंडर्स. हमें पर्सनली कैसे हेल्प हुई PSF से, एंड क्यों ऐसे फेस्ट हमें अटेंड करने चाहिए. तो फिर आई गेस द 48 hours वर लाइक बहुत ही नेटवर्किंग रिलेटेड. सो वी हैड पिचर्स वैली वेर इन वी हैड प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप्स कमिंग इन टू द पिक्चर टू रेज फंड्स टू पिच टू द ऑडियंस टू गेट टू द मार्केट टू रेज देयर ब्रांड अवेयरनेस.
हमने भी बहुत सारा फीडबैक लिया फ्रॉम द इन्वेस्टर्स विच वी हैड देयर. Normal students also participated in some competition like Bid Wars. We talk about Spectra as well. So I guess that was about PSF and background stuff, right, Atharva? अभी तो I guess Right. हाँ. So basically going into more detail कि जैसे पीएसएफ में क्या क्या अलग इवेंट्स हुए जो मेंशन की पिक्चर्स वैली हुआ. बेसिकली पिक्चर्स वैली ऐसा था कि पूरा एक लाइव शार्क टैंक हमारे सामने हो रहा था, और अभी तक हम टीवी पे देखते थे, बट अभी लाइव देखने में जो मजा आया है और जो सीखने को मिला है, क्या क्या अलग अलग लोग कर रहे हैं, अलग अलग स्टार्टअप्स अलग अलग डोमेन में. और फिर बिड वॉर्स था, देन स्पेक्ट्रा था, वेयर पीपल हु डोंट हैव अ लेजिटिमेट स्टार्टअप बट जस्ट एक आइडिया है और कुछ एक्सप्लोर करना है या वैलिडेशन चाहिए आइडिया से, तो उस टाइप के स्टार्टअप स्पेक्ट्रा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दे कैन पिच इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर्स. सो देयर वर बेसिकली इवेंट्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स. एक कोर्ट रूम क्लैश भी था, इसमें कोर्ट रूम सेटअप बनाया था, कुछ सिनारियोज दिए थे, और फिर सारे प्रोसीडिंग्स चल रहे थे. सो बेसिकली देयर वर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इवेंट्स गोइंग ऑन. और इन सब इवेंट्स के साथ एक था कि कॉलेज में स्टॉल्स लगे थे. अराउंड 100 स्टॉल्स थे, और हर एक स्टॉल एक स्टार्टअप को दिया गया था. सो बेसिकली देर वर 100 स्टार्टअप्स in our college campus. So just imagine the exposure one can get from that. So Right. uh, yeah, so I think now कि ये फेस्ट क्यों जरूरी है, like not only for the startup founders or investors but in general, क्यों ऐसे फेस्ट लोगों को अटेंड करने चाहिए. कि फर्स्ट बेसिकली कि आई गेस तुम्हें, अगर तुम्हें अभी आइडिया नहीं है कि क्या करना है आगे या तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तो तुम्हें उसका थोड़ा आइडिया लग सकता है बाय लुकिंग एट अदर स्टार्टअप्स, उनकी आइडियाज समझ के. और फिर ऐसा हो सकता है कि तुम्हें एक नया डोमेन पता चले जिसके बारे में यू आर completely unaware of. Then you can meet great people. Some might be great at tech, some might be great at marketing, और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. Am I right, Om? Yeah, so अभी just you mentioned about marketing, right? So we met our juniors there, first year का बंदा. He क्या नाम था उसका? They were having some Ages शायद shirt से. put Yeah, up. एंड हाँ, एंड देवर रोमिंग अराउंड हर एक स्टार्टअप पे जाके वो बात कर रहे थे. देवर रियली अप्रिशिएटिंग ऑल ऑफ देम. ऑब्वियसली वो समझ गया था हम लोगों को कि दे आर नॉट जेन्युइन बात करने है. देवर हियर टू प्रमोट समथिंग, बट द काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज दे हैड बात करने में भी, मार्केटिंग में भी, लाइक इट ब्लूड ऑफ हम दोनों का भी. हम ऐसा हो गए थे कि भाई ये फर्स्ट ईयर के लोग हैं एंड दे डूइंग सच ग्रेट थिंग्स. इवन अथरो टुक देयर नंबर फॉर डिजिटल मार्केटिंग स्टफ, राइट? एंड सो दिस वाज लाइक ओवरवेलमिंग फॉर अस कि हमको लगता है हम फोर्थ ईयर में आके वी नो अ लॉट ऑफ स्टफ कि भाई अभी तो वी जस्ट पास आउट, स्टिल वी नो दीस थिंग्स. एंड देन वी हैव सम पीपल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ आवर कॉलेज डूइंग पता नहीं क्या कर रहे थे वो लोग, बट एग्जैक्टली. कुछ मतलब वो तो बहुत डिजिटल ही मार्केटिंग एजेंसी चला रहे थे, और मेरे को लगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे खुद की, मतलब ऑफ कोर्स हमसे एज में वगैरह बड़े होंगे, बट जब बात की पता चला हमारे ही कॉलेज के जूनियर्स है, वो भी फर्स्ट ईयर. फर्स्ट टाइम कहाँ सोचते थे स्टार्टअप वगैरह. हम तो बस सोचते थे क्या मजे करेंगे, क्लास बंक करेंगे, दोस्त बनाएंगे. बट सो या बहुत दैट्स सही लोग मिलते हैं. एंड दे वर रियली एंड गुड एट इट. ठीक है, वो दे वर पिचिंग रियली गुड. मतलब इफ यू ट्राई टू टॉक टू देम तो मुझे लगा कि एटलीस्ट दे आर डूइंग इट फॉर द लास्ट 5 to 6 years. सो एग्जैक्टली दैट वाज एक्सपीरियंस रियली बहुत लग रहा इंस्पायरिंग फॉर बोथ ऑफ अस, आई गेस. एंड मार्केटिंग इज समथिंग जो इंजीनियर्स को नहीं आता है, लाइक जितना मैंने देखा है. वी गाइस आर गुड इन टेक, वी गाइस आर गुड इन फाइनेंस, बट मार्केटिंग ऐसा नीश है जो एटलीस्ट गोइंग ऑन ग्राउंड लोगों से बात करना, एंड देन मार्केटिंग इज द लाइक सबसे टफ चीज. यू कैन डू मार्केटिंग ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वो तो सब कर सकते हैं. But this is a thing which is very rare in these days. So that was a thing which it's still engraved in my mind कि हाँ भाई ये लोग कर सकते हैं marketing, तो we can do that marketing. है. और तो एक्चुअली that उनका was एक the thing. क्लाइंट भी था जिनका मार्केटिंग उन्होंने हर सॉल पे जाके किया, मतलब खुद की एजेंसी का तो किया, बट उनके हाँ. क्लाइंट का भी मार्केटिंग करके आया वो. That दैट was वाज. one of like one of the key learnings from PSF which I got that day. कि हाँ भाई लोग हैं. I initially thought कि लोग नहीं आते COEP के in PSF, but those who come they are really really good at that stuff. So obviously that was a great learning there. अरे हाँ, थोड़ा डिस्कस डायरेक्टली कि भाई इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या हुआ. Which investors do you met?
हम किसी को मिले एंड एक विच आई एम एबल टू रिकॉल कि एक क्वेश्चन या फिर एक डिमांड कॉमन थी इन्वेस्टर्स की बिफोर दे ट्राई टू इन्वेस्ट इन अस। एक चीज कॉमन था, व्हाट वाज इट? क्या लगता है? अरे सो वो तो बहुत ही मतलब मेजर एक डिमांड थी हर एक इन्वेस्टर्स की, और वो थोड़ी डिमांड इंटिमिडेटिंग थी ऐसे, और बहुत सोचना पड़ता है उसका आंसर देने के लिए। सो बेसिकली क्या हुआ कि हमारा भी एक स्टॉल था पीएसएफ में, और पहले तो हमारा स्टॉल उनने 91 नंबर बहुत एंड में दिया था, हमको लगा लोग इन्वेस्टर्स कोई आएगा भी कि नहीं। बट देन पहले पहले 1-2 घंटा तो कोई नहीं, हमको लगा वेस्ट यार 2 दिन। बट फिर बाद में जो लोग और इन्वेस्टर्स आने लगे, हमको 1 बजे से लेकर रात के 5-6 बजे तक बैठने का ही मौका नहीं मिला, हम बस बोले जा रहे थे, विजिटर्स को और इन्वेस्टर्स को अटेंड किए जा रहे थे। सो जो ओम बात कर रहे थे कि कौन कौन इन्वेस्टर्स आए, तो बेसिकली हमको 3 इन्वेस्टर्स आए अलग अलग कंपनी से या अलग अलग फर्म से। और उनमें तो बेसिकली सबने या तो हम में इंटरेस्ट दिखाया, नहीं तो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया। कुछ थे जिनको हम में इंटरेस्ट लगा, तो उनमें से जैसे एक इन्वेस्टर थे जिनको हमारे प्रोडक्ट प्रोडक्ट में वो बोले कि बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, इम्प्रूवमेंट्स करना पड़ेगा, बट शायद से उनको हम में कुछ दिख गया, और वो लिटरली आए 5 मिनट, हमें हमारा pitch सुना और फिर बोला चेयर दो करके, और बैठ गए। और पहले तो यूजुअली इन्वेस्टर्स जो आते हैं उनका वीआईपी का आईडी कार्ड पहन के आते हैं, वो तो हमको वीआईपी पता बैच चलता है होता है, इन्वेस्टर्स है, तो पता चलता है किससे ज्यादा ढंग से बात करनी है। बट बट ही वो स्टार्टेड फ्रॉम कि बीएसएफ का स्ट्रक्चर क्या है एंड वो इट वाज रियली वियर्ड। मतलब पता नहीं, इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। एक तो ही एग्जैक्टली वाज उनको, वेरी वेरी ऐसा सोच समझ के आया था बंदा वो, या फिर ही वाज रियली कैजुअल, बट आई फील सोच समझ के आया था। हाँ तो वो वही तो वो, और हमको पहले समझा ही नहीं वो क्या है, बस विजिटर है ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सब क्वेश्चंस पूछ रहा है। बट वो थोड़ी देर बाद बोला कि चेयर दो, ये डिस्कशन आधा घंटा चलने वाला है, तब हमको थोड़ा अजीब लगा कि भाई ये क्या है, चेयर देके आधा घंटा वो एक सॉल्व पे डिस्कशन क्या ही करेंगे, और कौन है ये बंदा, ना कोई इसके पास आईडी कार्ड है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बट फिर बाद में वो बोला कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, और पूरा हमारा उसने प्रोडक्ट जान के लिया, सब मॉडल जान, रेवेन्यू मॉडल, बिजनेस मॉडल सब जान के लिया। और फिर वो बोला कि देखो मेरे को लगता है कि अपन दोनों मिलके, यानी हम टीम क्लोवर एक पार्टी और वो एक पार्टी, तो बेसिकली हम मिलके एक नया स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो वो डिस्कस करने के लिए बेसिकली वो आधा घंटा बैठा था, और तब भी कोइंसिडेंटली एक बंदा दूसरा आया जो खुद का आईटी कंसल्टेंसी फर्म चला रहा था। रिसेंटली उसने भी अपना जॉब छोड़ा था और आईटी कंसल्टेंसी फर्म खुद का चला रहा था। सो बेसिकली क्या होगा, एक पॉइंट पे हम है जो स्टार्टअप कर रहे हैं, एक इन्वेस्टर है, और आईटी कंसल्टेंसी फर्म चलाने वाला है। सो बेसिकली उस पॉइंट पे वो सब लोग थे जो एक स्टार्टअप को चलाने के लिए चाहिए थे। तीनों पार्टीज थी जिनके पास 3 अलग स्किल सेट्स है। सो हम तीनों बैठ के डिस्कस कर रहे थे, एंड ही सेड कि अपन ये प्रोडक्ट में थोड़ा सा चेंज लाके बेसिकली कुछ ऐसा करेंगे कि टैक्टो फॉर फाइनेंशियल एडवाइजरी, और उसमें अपन 3 पार्टीज मिलके कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत तगड़ा एक स्टार्टअप बना सकते हैं। एंड हमको पहले लगा कि इतना उसको हमें कुछ दिख गया कि, और कॉन्फिडेंस दिखा रहा था कि अपन करेंगे, अपन तीनों मिलके कर सकते हैं, हमको भी सही लगा। बट वी वर लाइक कि हाँ भाई डन डन डन। बट देन ही वाज लाइक कि क्या तुम्हें जॉब लगी है, हमने बोला हाँ भाई लगी है, प्लेस्ड है दोनों। बट फिर ही सेड वो छोड़नी पड़ेगी, तुम लोग वो ज्वाइन नहीं कर सकते, ये मेरे को लिख के दो। और इससे पहले बाद में और फेस्ट के अलावा भी कभी जब भी हमने इन्वेस्टर से बात की है, सबका हमने देखा है कि सब कुछ है कि हम जॉब छोड़ के बस इस पे फोकस करें, ताकि बेसिकली हम हमारा फुल फुल मतलब 100% दे, और उनका इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट ना जाए। बट एनीवेज तो वो थोड़ा इंटिमेटिंग रहता है कि वो डायरेक्ट बोल देते हैं जॉब छोड़ो भाई, अब भी के अब भी। और फिर वो But पूछने ISPOC, he लगा, also got another approach ना कि लोग like the IT consultancy guy which you met, he was like कि अभी starting में don't dilute your equity, अभी you work अपने bootstrap कर लो, which I also feel कि बराबर है। क्योंकि अगर अपन ने starting में कोई funding उठा लिया then we have to work for that direction। पता नहीं product market fit है या नहीं है। That is a thing which वो consultants वाले बंदे ने अच्छा एग्जैक्टली बोला मतलब, था। But हाँ वो idea पूरा अलग था, that is a different हाँ नहीं मतलब दो case अप्रोच होते हैं, कि altogether। एक होता है कि अगर तुम खुद से कर सकते हो तो थोड़ा खुद से कुछ लेवल तक बिल्ड कर लो, ताकि तुम्हारा अच्छा खासा ओनरशिप रहता है, पकड़ रहती है तुम्हारी स्टार्टअप पे, एंड ऐसा नहीं कि कोई तुमको इन्वेस्टर या कोई एक डायरेक्शन में बस डिक्टेट कर रहा है, तुम उधर भाग रहे हो।
मतलब तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध। बट देन और फिर जब ठीक ठाक स्टार्टअप चल जाए तब जॉब छोड़ देना या स्विच मार लेना, वॉट एवर। और दूसरा एक अप्रोच है कि बट आई थिंक कि अगर किसी को ज्यादा आइडिया नहीं आ रही है, या एक ऐसे फीलिंग आ रही है कि अरे अभी इधर अटक गई, इस पे आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, तो इन दैट केस इफ यू आर रेडी टू टेक bold decisions and risk, then you can I think get associated with a startup accelerator or with an investor, and then जैसे वो बोलते हैं कि जॉब छोड़ो इस पे करो, और वो तब भी तुम पे इन्वेस्ट करते हैं जब उन्हें तुम पे या तुम्हारे प्रोडक्ट में दम दिखता है। तो बेसिकली तुम अगर रिस्क लेने को रेडी हो तो तुम लोग वो ज्वाइन करके फिर उनके साथ एसोसिएट होके जॉब छोड़ के ये पूरा कंटिन्यू कर सकते हो, बट वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। बट हाँ, ये फनी इंसिडेंट हुआ था कि लाइक हम सब शॉक हो गए थे कि भाई ये बंदा डायरेक्ट जॉब ही छोड़ने को बोल रहा है, और फिर क्वेश्चन ऐसे But पूछने that लगा the case कि with हर एक investor ना, every investor wants to do that obviously। अगर if you are also investor, तुमको पैसा डालना है तो you would look on to कि भाई सामने वाला बंदा full time करे ये। बट वही है अभी आए, पता नहीं, वो तो अभी still we वो have to figure out। सर्कमस्टांसेस बट लोगों पे अभी सब पे डिपेंड करता है, कई हाँ, फैक्टर्स तो होते हैं। और एक उसने क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारा एम क्या है लाइफ में, वो एकदम थोड़ा फिलोसॉफिकल भी हो रहा था, पता नहीं वो हमें जानने की कोशिश कर रहा था क्या। क्या पूछा था वो कि ऑप्शन दिए थे कितना पैसा ने, कमा लोगे like। हाँ पहले तो बोला था नेम नेम फेम और पैसा क्या चाहिए इनमें से। हाँ, और फिर पैसा बोला तो फिर बोला कितना, अभी हमको कुछ आइडिया ही नहीं है भाई कितना कमाना है क्या है। तो मेरे को याद है ओम ने सीधा बोल दिया randomly था, said। हाँ 1000 करोड़ बोल दिया था। बोला सोच समझ बट के आई बोलो। आई रेड इट समवेयर, आई गेस किसका तो बुक था, उसमें ही रिटर्न कि भाई इफ इंडिया में यू हैव 1000 करोड़ इज मोर देन इनफ, फिर उसके ऊपर का एवरीथिंग इज ऐसा इनवैलिड, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता फिर उसके बाद। सो 1000 करोड़ आई टोल्ड हिम इटसेल्फ में एक बहुत ही बड़ा नंबर है। बट हाँ, सही बट है, ही एक वाज लाइक अलग कि पैक्टो खुद 6000 करोड़ से बेटर। आई डोंट नो वैल्यूएशन क्या पैक्टो का, बट एग्जैक्टली। तो पर हाँ वो एक अलग एक्सपीरियंस था मस्त उस इन्वेस्टर से बात करने का। एंड हाँ, देन पैक्टो का वैल्यूएशन इज $418 million। 418 million। हाँ, अमेजिंग, ग्रेट। डॉलर टू रुपी। 418 million is too much रे। इट्स टू मच नहीं बैठता यहाँ पे। लेट इट बी। बहुत ही सही कर रहा है। प्रैक्टो इंडियन कंपनी है बाहर की कंपनी है? नो आइडिया ब्रो। बट आई नो प्रैक्टो, बट क्या पता, शायद इंडियन कंपनी होगी, इतना बोल रहा होगा तो क्या पता। ढूंढना पड़ेगा। हाँ, इंडियन कंपनी है। सही है यार। शशांक एंड अभिनव आर इट्स को फाउंडर्स। अभिनव सीटीओ। हाँ, इंडियन कंपनी है। बट एक तो वी गॉट टू नो कि मतलब रेजिंग फंड्स इज नॉट दैट मच टफ इफ यू हैव दैट कैपेबिलिटी, पिच करना Ex- आता है, आइडिया बराबर है, एंड व्हाट मार्केट नीड्स। बट अगर सस्टेन करना है तो यू शुड बी प्रॉफिटेबल, दैट्स वो तो है। और बट मेरे को मतलब आई और पर्सनली थिंक वही, अब मेरे को लगता है कि भाई व्हाट स्विगी जोमेटो इज डूइंग राइट नाउ, लॉस कर रहे हैं। इट कैन गो बहुत ज़्यादा साउथ, जैसे बाइजू गया, हाँ अगर वीसी ने बंद कर दिया फंडिंग तो। बट सस्टेनेबल होने के लिए आई पर्सनली फील कि एटलीस्ट एक फिस्कल ईयर में यू हैव टू गेट प्रॉफिटेबल, बाकी तो इट्स अप एग्जैक्टली टू फाउंडर्स जो भी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और फिर बट हाँ, कमिंग बैक टू द इन्वेस्टर्स, सो और दो इन्वेस्टर्स आए। एक एक इन्वेस्टर हमें बोल रहा था, एक इन्वेस्टर तो बेसिकली शायद से बस उसका जो एक प्रोग्राम है कोहॉर्ट चलाता है, उसके एडवर्टाइज करने आया था हमारे पास, जो नर्चर करके था। और दूसरा एक था, वो एक बंदा जेन्युइन लगा मेरे को। एक तीसरा इन्वेस्टर आया था, बहुत अच्छे से हंस के बात कर रहा था, और वो रितेश अग्रवाल जैसे दिख रहा था। लाइक पहले तो हमको उसका हाँ, मतलब से राइट उसका राइट स्माइल, उसका चेहरा, राइट। तो बहुत और सिमिलर था वो। बिहेवियर भी, मतलब इनफैक्ट इसे बहुत स्वीट बिहेवियर, पूरा टाइम से हंस सॉफ्ट के बात हम्बल, करना, हाँ, इट सॉफ्ट वाज वेरी स्पोकन। हम्बल। तो वो सही था, और उसने हमको क्या आइडिया दी कि इंस्टेड ऑफ collecting the data from the users की and mapping it basically कि कौन सा मर्चेंट क्या बेचता है, कि मैपिंग अ यूपीआई आईडी टू व्हाट डज द मर्चेंट सेल। तो और उससे एनालिसिस करके आगे यूजर को
एक्सपेंस ट्रैकिंग में हेल्प करने के बजाय, यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट उसके साथ यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज कि सेल दिस मैप्ड डेटा, कि बेसिकली हर मर्चेंट का यूपीआई आईडी, एक मर्चेंट नेम उसके प्रोफेशन से नहीं होता, लाइक मिठाई वाला, उसका मर्चेंट नेम नॉट नेसेसरीली राजेश मिठाई वाला है, उसका नाम उसके पर्सनल नेम होगा कि राजेश चौहान या वॉट एवर। सो तुम ये डेटा यूजर्स को बोलो कि ये तो इंसेंटिवाइज करो कि यूजर्स उधर जब भी पेमेंट करे कोई भी शॉप पे, तो तुम्हारे ऐप पे ये रिकॉर्ड करे कि यह क्या चीज ली है, मतलब क्या प्रोडक्ट बाय किया है, सो दैट वी गेट टू नो कि वो मर्चेंट क्या बेच रहा है, एंड देन यू कैन सेल दैट डेटा टू बैंक्स, क्योंकि एंड गेट मनी आउट ऑफ इट, क्योंकि बैंक्स के पास वो कैटेगराइज डेटा नहीं है और वो यूजर्स को बहुत फ्लॉड डेटा मिलता है, 50 to 60%। लाइक ओम पाटिल बता सकता है कि जैसे एसबीआई का क्या हुआ, और फिर देन यू कैन ऑल्सो टेल आवर ऑडियंस कि अपना ट्रू कॉलर का जैसे बेसिकली सिस्टम था, कैसे उन्हें डेटा कलेक्ट किया, हाँ, तो सो वैसे ही वी आर प्लानिंग। बेसिकली his idea was to go from D2C to B2B। तो उसका जो मोर और लेस था। सो मेन इशू क्या है, तुम लोग के जो पेमेंट्स होते हैं, ऑल द पेमेंट्स वी हैव, इवन इफ टू कैटेगराइज कि भाई फूड है, बेवरेज है, इन्वेस्टमेंट्स है, जस्ट ट्रांसफर्स है या फिर क्या है, तो उस चीज़ में ऑल दीज बैंक्स डोंट हैव एकदम डिटेल डेटा। तो जो बहुत बड़े बड़े एमएनसीज है, फॉर एग्जांपल जोमेटो, स्विगी, जूडियो, अगर उनमें पेमेंट्स किए हम लोगों ने, तो देन वी आर कैटेगराइज्ड प्रॉपरली। और एल्स जो कैटेगराइजेशन होता है, इट्स 80% 90% मिसलेनियस। सो जो कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा है, व्हाट इफ वी ट्राई टू स्टैंडर्डाइज इट द वे ट्रू कॉलर डिड इन द पास्ट। सो दैट वाज द एंटायर take in his pitch, which we also thought कि हाँ, it makes sense completely। so we got to know that particular aspect of कि भाई ये भी कर सकते हैं, and we can sell that data to as a B2B standard database through assets। there are multiple ways to monetize that particular domain। so वो एक बहुत अच्छा feedback था। so obviously apart from investment feedbacks is what we got to, obviously सब इन्वेस्टर ऐसे नहीं होते। कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी थे जो who came along, जो पूछे क्या है वगैरह, इंटरेस्ट नहीं था, जस्ट दे जस्ट लेफ्ट इन अ वेरी रूड वे, ठीक है। एंड यू हैव टू बी रेडी टू फेस दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। हर बंदा, हर इन्वेस्टर चिल या फिर रेडी टू हेल्प नहीं होता। देर आर सम पीपल हु आर देयर टू बस भाई ये नहीं, ये चलेगा नहीं, एंड दे जस्ट मूव अराउंड, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता नॉलेज क्या है, मतलब उनको पता ही नहीं होता कि ये एस्पेक्ट भी क्या है। अब यू कांट एक्सपेक्ट जो बंदा फैशन में है कि वो कल आके बोलेगा कि फाइनेंस अच्छा है, तो और वो यू पता हैव टू हो भी तो मैनेज। सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, हाँ, ओपिनियंस आर डिफरेंट, या सबके पास्ट बट हाँ, एक्सपीरियंस देयर वाज ओपिनियंस अलग दिस। होते हैं, तो उसके कारण सबके डिसीजंस अलग होते हैं, बट ठीक है, हाँ, सो दैट्स अ दिस वाज, पार्ट ऑफ द जर्नी, सो you have to face both type of investors, so yeah. एंड And दैट इज रियली डिसअपॉइंटिंग। जब कोई आता है बोलता है कि नहीं नहीं ये चलेगा नहीं, या फिर नहीं ये तो नहीं है, एंड दिस इज अगले चल जाते हैं नेक्स्ट पे। तो इट फील्स लाइक कि बहुत ऐसे यूजलेस फील होता है, बट वी हैव टू स्टिक देयर। वो एक अच्छा लर्निंग था काफी, राइट। राइट, तो एक लर्निंग तो था कि इन्वेस्टर्स को कैसे डील करे, दूसरा था कि इन्वेस्टर से जो फीडबैक मिले, बेसिकली हम एक जैसे बहुत अच्छा सजेशन था कि वी शुड शिफ्ट मॉडल फ्रॉम डी टू सी टू बी टू बी, एंड द थर्ड लर्निंग वाज कि बेसिकली क्या क्या लोग अलग अलग कर रहे हैं स्टार्टअप्स, और हाँ, वो बहुत मतलब पता चलता है कि दुनिया में हमसे कितने बेटर लोग हैं, हमको और कितना करना है। और वैसे, और सब एज ग्रुप के थे, ऐसे छोटे बच्चे भी थे, लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स, थर्ड फोर्थ ईयर या जस्ट ग्रेजुएट्स, और कुछ सम ऑफ देम वर वर्किंग प्रोफेशनल्स जो जॉब के साथ स्टार्टअप भी संभाल रहे थे, तो और अलग अलग स्टार्टअप्स थे, आई थिंक मेडिकल में आजकल बहुत स्टार्टअप्स हमको उन दो दिनों में दिखे। या बट लाइक एक पैटर्न देखे हम लोगों ने कि बहुत सारे स्टार्टअप बस एआई कर रहे हैं। आई डोंट फील कि इतना एआई का जरूरत है या नहीं है। सो हाँ, मतलब विद सब में ऐड डाल आर्टिफिशियल रहे हैं, मेरे इंटेलिजेंस को हम लग रहा लोग था कि आर्टिफिशियल प्रॉब्लम भी देख रहे हैं। राइट, जो एक बड़ा इशू है भी नहीं, तो कुछ इसमें था कि बस एआई डाल के वो उसमें एआई कर, बेसिकली एक था कि डॉक्टर की हैंडराइटिंग पहचान के तुमको वो बताएगा कि क्या लिखा है, अरे बट तुम लोग अभी केमिस्ट के व्हाई पास डू जाके वी उसको नीड पता दैट? चलता है, उसके लिए अलग से ऐप क्यों यूज करेगा कोई।
मतलब हाँ, तो टेक्नोलॉजी अच्छा है, इट नीड्स लॉट ऑफ मतलब R&D उस पे, बट व्हाई डू वी नीड इज द फर्स्ट क्वेश्चन। राइट नाउ एट क्लोवर वी आर ट्राइंग टू फाइंड दैट आंसर ओनली है, कि भाई क्या चाहिए एग्जैक्टली हमें। अब अगर वही क्लियर नहीं है, फिर यू आर मेकिंग समथिंग एल्स, तो वो आई डोंट फील कि वो इतना सस्टेनेबल है। फिर बनाने के लिए बना दो, छोड़ दो, वो तो फिर ट्रेंड कर लो, राइट, वो तो मतलब ले उनकी ले भी बना स्टडी लो, रहेगी बस कुछ, ये बट उनकी भी खुद की कुछ स्टडी रहेगी, व्हाट वी बट फील। वो हाँ, व्हाट वी फील कि अगर मेरे को डॉक्टर का हैंडराइटिंग क्यों मैं अलग से पढूं, मैं केमिस्ट के पास जाने ही वाला हूँ उसके प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिसिन खरीदने, अगर वो वही। बता ही देगा। उसके लिए तुम एआई बना रहे हो, एआई बनाने के बाद भी केमिस्ट के पास तो जाने ही वाले हो, तो फिर वो है। तो एआई थोड़ा ज्यादा ही सब लोग बस डाल देते, जैसे पहले आया अपना हाउसिंग क्राइसिस, फिर डॉट कॉम बबल, और अभी मेरे को लगता है एआई का ऐसा आ रहा है कि सब स्टार्टअप्स एआई कर रहे हैं, और एवरीबॉडी इज जस्ट लुकिंग हाँ, आउट फॉर एआई। तो अननेसेसरीली वो ये हो रहा है। बट तो उसका भी उसका एक भी आई सैचुरेशन थिंक, पॉइंट आएगा ही। हाँ, मैं वो हर एक बबल एक फूटा पॉइंट है, ऑफ तो टाइम ये के भी बाद बबल फिर। आई थिंक फूटेगा। जैसे हाँ। डॉट कॉम बबल में था कि सब लोग अगर कोई एकदम अपना बिजनेस इंटरनेट पे लेके जा रहे थे, और जो भी ये कर रहा था, तो इन्वेस्टर्स वर ब्लाइंडली इन्वेस्टिंग इन दो स्टार्टअप्स, और जब वो एक बार डॉट कॉम बबल फूटा, सब इन्वेस्टमेंट, सब स्टार्टअप्स डूब गए। सो आई थिंक एआई का भी आई डोंट नो कितना हो रहा है, बट हाँ, मतलब व्हाट आई फील कि प्रोडक्ट्स अच्छे थे, बट उसमें से जो एआई फीचर्स थे वो बहुत स्टार्टअप में से अननेसेसरी लगे। बट द पीप राइट। ऑल द स्टार्टअप फाउंडर्स और मतलब से बहुत पैशनेट अबाउट देयर प्रोडक्ट, तो वो एक अलग एनर्जी रहती है तब उस फेस्ट में। राइट। या वो तो एंड है, वी गेट द परफेक्ट ऑडियंस के उसको पूछ सकते हैं हम लोग, इनफैक्ट, हाँ, कि क्या चाहिए तुम्हें। एग्जैक्टली, वैसे हमें भी पता चला, जैसे कि हमें पता चला कि हमारा प्रोडक्ट, हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, बेसिकली जो हिसाब नहीं रहता, या जो महीने का खर्चा है, अब तो महीना एंड होने से पहले ही खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो उसके साथ वो प्रॉब्लम हो सबको रहा है। बट स्पेशली वो 18 टू 30 इयर्स के एज वालों को जो हमने देखा, जो विजिटर्स जो हमारे स्टॉल पे आए, तो उनके रिएक्शन से, उनसे बातचीत करके हमको पता चला कि जो लोग हैं फ्रॉम 18 टू 30 एज, तो उनको ये ज्यादा फेस होता है, और वो ज्यादा रिलेट करते हैं, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से दिख रहा था, हाँ हाँ, ये तो हमारे साथ होता है, हमको ये पक्का चाहिए प्रोडक्ट करके, ऐसा। सो हमें भी पता चलता है कि हम हमारा बेसिकली यूजर सर्वे, यूजर रिसर्च हो जाता है उस फेस्ट के टाइम पे, इन्वेस्टर्स से भी कनेक्शन होता है। और जैसे ओम पहले बोला कि फंडिंग उठाना भी बहुत इजी हो गया है, नेटवर्किंग इजी हो गया है। सो पहले था कि तुम्हें जरूरत है, तुम स्टार्टअप इन्वेस्टर्स के पास जाओगे, ये वो, बट अभी ऐसे हुआ है कि बिकॉज ऑफ द बूमिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, कुआं तुम्हारे पास आ रहा है, बेसिकली तुमको इजीली, तुम बस थोड़ा इधर उधर आंख खोल के देखो, इन्वेस्टर या कोई अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास खुद आएगी, तुमको बस वो यूज करनी है। लाइक व्हाट वी राइट। डिड इज कि बस 2 दिन स्टॉल पे खड़े रहे, इतने सारे इन्वेस्टर्स और अपॉर्चुनिटीज और फीडबैक्स हमारे पास आए। तो और इनफैक्ट अभी वी वर नॉट रेडी उतना जितना वो लोग हाँ, वर्क, मतलब जितना वो ऑफर कर रहे थे, उतना लगा था कि हमने उतना कुछ किया ही नहीं अभी तक। बाहर यार, मतलब दे भी क्यों रहे लोग। तो या एग्जैक्टली, दैट इज द थिंग विच यू हैव टू वर्क ऑन, मतलब अपार्ट फ्रॉम जोक्स, बट हाँ, उस पर काम करना पड़ेगा इफ यू डू दैट। और तो हाँ, बट एक और थिंग फॉर ऑल द टेक गाइज ऑफ टेक स्टार्टअप, वी हैव नोटिस कि कस्टमर्स और यूजर्स में बहुत डिफरेंस है। वी गॉट अ फीडबैक फ्रॉम वन ऑफ द गाइज, बिकॉज हम एक रेवेन्यू मॉडल में ट्राई कर रहे थे कि वाई डोंट वी हैव अ सब्सक्रिप्शन मॉडल, वेर इन कुछ फीचर्स हम लोग प्राइम काइंड ऑफ थिंग करेंगे, या फिर कुछ फीचर हम लोग मोनेटाइज करेंगे। सो देयर वर पीपल, जो बहुत अच्छा फीडबैक था कि वी वुड यूज इट जब फ्री होगा, बट वाई शुड वी पे फॉर इट। सो ये एक चीज था विच यू गॉट, कि भाई यूजर्स, अगर तुम्हारे पास 1 लाख यूजर्स है, इट इज नॉट इक्विवेलेंट कि तुम्हारे पास 1 लाख कस्टमर्स है। तो राइट। वो जो कन्वर्जन रेशियो है, दैट नीड्स टू बी स्टडीड अ लॉट तो बिफोर कस्टमर इज कोई भी डिफाइंड टेक बाय में कि चेंज उससे होता तुमको है। पैसा कमा पा रहे हो, कस्टमर इज डिफाइंड बाय कि तुम उससे पैसा कमा पा रहे हो, यूजर इसकी जो बस तुम्हारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है। ऐप बस बस डेटा तुम लोग को दे रहा है। हाँ, हम सब तो लोग दैट स्पॉटिफाई दैट के दैट्स यूजर्स हैं, सी। कस्टमर्स हाँ। बहुत कम है हमारे में से। इंडिया में वो हाँ, मेंटेलिटी है कि राइट। स्पॉटिफाई जैसे एंटरटेनमेंट वाले ऐप को भी हम लोग, और वो सस्ता भी होता है, फिर भी हम लोग सब्सक्रिप्शन भी नहीं भरते। तो राइट। या
सो वो एक चीज़ है। फिर अगेन सेंटिमेंट बहुत मैटर करता है इन्वेस्टर्स का। अगर इफ इन्वेस्टर्स आर बुलिश ऑन एक पर्टिकुलर सेक्टर और तुम्हारा सेटअप उस सेक्टर में, तुम लोग को फंडिंग मिल जाएगा इफ़ यू नो बायजूस, तो वो तो है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर देर मेडिकल के तो एज देर इज अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इन मेडिसिन। फार्मा इज अ सेक्टर वेयर वी आर सीइंग अ लॉट। बाकी तो एनबीएफसीज वगैरह तो है ही। सो ओवरऑल इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। नेटवर्किंग ही हुआ, लाइक नेटवर्किंग एंड वही हमारा यूजर्स पर्पस था कस्टमर के साथ वैसे। बातचीत। हाँ, नेटवर्किंग ही था, मेंटरशिप। बिकॉज हम लोग को था कि स्टॉल लेना है नहीं लेना है, सो शुड वी टेक दैट, दे आर गिविंग पर लेना है नहीं लेना है। बट हाँ, इन द एंड बट वी गॉट टू नो कि हाँ भाई अच्छा किया लिया। वी गॉट हाँ, टू नो क्योंकि लॉट ऑफ थिंग हम नेटवर्किंग हम हुआ। राइट, हमारा देखिए हमारा प्रोडक्ट ही रेडी नहीं है, हम लोग क्या दिखाएंगे स्टॉल पे लोगों को। बट देन जो नेटवर्किंग हुआ है, जो फीडबैक्स मिले हैं, लाइक वो रूम पे बैठे बैठे तो कभी नहीं मिल सकते हैं। तुम बाहर भी घूमोगे तो मुश्किल से मिलेंगे, बट अभी एक जगह पे इतने अलग टाइप के लोग थे, फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, विजिटर्स, यूजर्स, सब, कि बहुत, दोनों दिन बहुत फ्रूटफुल गए, बहुत ही ज्यादा। एंड द बेस्ट डिसीजन वाज कि 2 दिन उधर डेडिकेट करके स्टॉल लेके स्टॉल पे पूरा टाइम खड़े रहना बिना बैठे। बट या, ऑल ऑफ इट वाज डे वन वर्थ वाज इट। डे वन पे तो वी वर सेटिंग कितना सुबह से शाम तक। बाद में तो वी वर कि भाई नहीं, और नहीं चाहिए हम लोग को इधर। हाँ, हमने जा रहे हैं हम लोग। हमने लाइक 9 बजे ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद हम सीधा 6 बजे खाने गए। तब तक हम कुछ नहीं खाए, बीच में बैठे नहीं, बस पानी पीने का टाइम मिलता था। कंटिन्यूस विजिटर्स, बट इन्वेस्टर्स हाँ, आ रहे थे। बट एंड में क्रेजी तो हो गया एक्सपीरियंस था। था, मैं तो मस्त। बोल रहा भाई तू देख ले, अथरो तू देख ले भाई, मेरे को नहीं बात करनी और दिस वाज माय लास्ट रिएक्शन। उसके बाद तो एग्जॉस्ट हो गए थे। 5:30 6 o'clock वी वर डन। मैं उसके उस बाद तो भाई रात बात ही नहीं करनी थी। मैं उस रात जाके 7 बजे सोया, अगले दिन सुबह 9 बजे उठा हूँ मैं 14 घंटे सोया उसके बाद। भाई बहुत ही हेक्टिक था, बट मजा आया। बट सेटिस्फाइंग था, बहुत बहुत सेटिस्फाइंग था, लाइक और गॉट टू इतने लर्न अ मेहनत लॉट करने के बाद, फिर वो थकने के बाद, मेहनत करने के बाद वो 14 घंटे सोना, वो भी मस्त लगता है कि रिवॉर्डिंग लगता है कि भाई काम किया, अभी सोएंगे भाई, वी डिजर्व दैट। तो हाँ बहुत ही वही वही ओवरऑल। नो कंसल्टेंसी कैन डू दिस वर्क फॉर यू। खुद जाना पड़ेगा मार्केट में, वो तो है। वो तो है, वो तो समझ एग्जैक्टली। गया। नॉट जस्ट फॉर क्लोवर, नॉट जस्ट फॉर आवर स्टार्टअप, बट जो ओवरऑल नॉलेज तुमको इंक्रीज होता है, you have to go in these networking, not just PSF but any networking opportunity like this, वो तो है ही। और अगर लाइक कोई स्टार्टअप भी नहीं कर रहा है खुद का, बट फिर भी जाना चाहिए, क्योंकि अभी सब लोग हाँ बेसिकली अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो तुम मैक्सिमम 90% लोग, 90 भी मैं कम बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा ही लोगों को पता नहीं होता कि वो पसंद जो है वही कर रहे हैं कि नहीं, या जो कर रहे हैं वो पसंद है भी कि नहीं, पसंद कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, और क्या पसंद है वही पता नहीं चलता है। बट ऐसे इवेंट्स अटेंड करने से तुमको बहुत सारा नॉलेज बढ़ता है, और हो सकता है तुमको एक इवेंट से तो नहीं पता चलेगा, और अगर तुम बहुत सारे इवेंट अटेंड करोगे, उसमें से हो सकता है तुमको कुछ आइडिया मिल जाए कि आगे हम ये कर सकते हैं, हमको ये भी पसंद है, या फिर कुछ लर्निंग्स मिल जाती है जो आगे काम में आती है। तो ऐसे इवेंट्स आई वुड सजेस्ट डेफिनेटली अटेंड करने चाहिए। और पुणे स्टार्टअप फेस्ट तो है कि हर साल होता है, पुणे, मुंबई और आसपास के सिटीज से, टाउन से बहुत लोग आते हैं। तो जो भी महाराष्ट्र में है, उनको तो पुणे स्टार्टअप फेस्ट अटेंड करना ही चाहिए, आई वुड से। एक दिन तो आना दैट ही आईटी चाहिए। कंसल्टेंसी का है, वो नासिक से था, दैट उसे कार्ड दिया था। सी केम ऑल फ्रॉम नासिक जस्ट फॉर दैट सिंगल फेस्ट। सो तब एग्जैक्टली। समझा कि नहीं भाई लोग सीरियस ले रहे हैं इस चीज को। क्योंकि 4 साल हाँ, वी डोंट, मेरे को लगा नहीं था कि एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years आई नेवर थॉट कि दिस वाज रियली सीरियस, बट इट इज राइट। सीरियस, मतलब लोग मेरे को लेंगे क्या इसको लगता है, सीरियस। स्टार्टअप फेस्ट तो अपने कॉलेज में पहले से चल रहा है, बट शार्क टैंक वगैरह के कारण लोग और इंटरेस्ट लेने लगे स्टार्टअप्स हाँ में वगैरह, और फिर इसलिए ऐसे स्टार्टअप फेस्ट को भी लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, राइट। और फेस्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि वो स्टार्टअप, शार्क टैंक ने स्टार्टअप्स को एक बहुत ऐसे कुछ फैंसी थिंग बना दिया है कि भाई तुम स्टार्टअप कर रहे हो, फाउंडर हो, तो कूल हो। पहले उनको नर्ड समझा जाता था, अब वो शार्क टैंक के कारण उनको कूल समझा जा रहा है। बट उसकी उसके कारण बहुत लोग हैं कि बस पता नहीं है स्टार्टअप करना है नहीं करना है, एक्सपीरियंस, स्किल सेट का भी पता नहीं होता, बट बस वो कूल है इसलिए फिर, जाते हैं बस, हाँ बस कूद जाना शुरू बस। करने का देख रहे हैं, या वही, या फिर कोई प्रॉब्लम है भी नहीं तुम्हारे पास सॉल्व करने के लिए, बट तुम्हें स्टार्टअप करना है, इसलिए तुम जहाँ प्रॉब्लम नहीं है वहां भी तुम लोग प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो और कुछ कर रहे हो।
तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज द की, मतलब वो ही चल रहा है 80% स्टार्टअप्स में, व्हाट आई वुड से। एग्जैक्टली एंड फिर लिंक्डइन पे डाल देना है सीईओ एंड फाउंडर एट सो एंड सो, बट इट एग्जैक्टली इट डजंट मेक यू सीईओ। बट एंड ये जेन्युइनली वैल्यूएशन मतलब, एफर्ट्स डाल रहे हैं। आई माइट बी रॉन्ग, मतलब मुझे पता नहीं, आई माइट बी रॉन्ग, बट आई पर्सनली कि वैल्यूएशन नहीं मैटर करता है, इफ प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा मैटर करता है फॉर मी एटलीस्ट। बिकॉज इन द एंड अभी मैं तेरे से बात कर रहा था डे वन के बाद कि लेट सपोज आई बाय 0.001% स्टेक फॉर 1000 रुपीज इन क्लोवर। अब मल्टीप्लाइड बाय 100 into 100, उतना वैल्यूएशन हो जाएगा हम लोग का क्लोवर का, नहीं बट कि व्हाट आई तो थिंक इज 100 कि वो into 100 वैल्यूएशन भी आफ्टर ऑल प्रॉफिट से डिफाइन होता है कि ऐसे नहीं कि तुमने तुम्हारा रेवेन्यू कम आ रहा है बट हाँ तुम बट इतना वैल्यूएशन रख रहे इफ यू सी, हो और वो if you see Indian market right now, the मतलब वो ओवर वैल्यूड होता है, बट ठीक है ना, मतलब द थिंग इज कि इट इज अ इंडिकेटर कि कितना अच्छा कर रहा है, बट इट वो सोल नहीं है रीजन। मतलब हाँ ऑफ कोर्स फाउंडर्स तुम्हारे ब्लाइंडली रेवेन्यूज बस कितने आ रहे वैल्यूएशन हैं। से भागते हैं। हाँ वही, बस ब्लाइंडली बस वैल्यूएशन में से भागना भी नॉट अ बिग डील, जो अभी हाँ लोग वो कर रहे हैं। शार्क टैंक में होता है लाइक कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स बहुत हाई वैल्यूएशन लेके आते हैं। शार्क्स उनको पहले पूछते हैं कि भाई तुम्हारा रेवेन्यू इतना नहीं है, प्रॉफिट्स इतने नहीं है, सेल्स इतने हो नहीं रहे, तुम क्या हिसाब से वैल्यूएशन लेके आ रहे हो। तो वही है वैल्यूएशन सेंटिमेंट, बस अभी ज्यादा तुम इन्वेस्टर दिखाने से बुलिश, तो कुछ होने नहीं वाला। अब नहीं तुम इन्वेस्टर्स आर बुलिश तो भागते रहो, फिर तो क्या ही करना है। इंडियन मार्केट्स वही होते हैं, बट पता, आई माइट बी रॉन्ग, बट वही देखा मैंने तो। प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल चाहिए मैं, आई पर्सनली थिंक कि भाई डे वन से ही ऐसा चाहिए कि भाई अगर 100 रुपये डाल रहे तो भाई 110 बाहर निकालो उससे, 10 रुपये तो प्रॉफिट कमाओ एटलीस्ट। दैट इज व्हाट माई ऐसे टेक इज। सो बेसिकली माइट बी रॉन्ग। ओवरऑल हो सकता है। So basically, overall, concluding the podcast, we discussed what is PSF, Pune Startup Fest, कौन कौन दिस वाज आता नॉट है। स्पॉन्सर्ड बाय पीएसएफ, हाँ सो हम नो बस हमारा स्पॉन्सरशिप एक्सपीरियंस हियर शेयर विद कर रहे हैं। कुछ वरना भी एंडोर्स पीएसएफ सो मच, लोग ले भाई दीज आर पीएसएफ गॉड समवॉट। अरे हाँ, बट आई वाज वॉलंटियर ऑफ पीएसएफ इन फर्स्ट ईयर, मार्केटिंग वॉलंटियर, आई स्टिल रिमेंबर। बट पर ठीक है, मार्केटिंग अभी सब कर कुछ रहे हैं, मार्केटिंग ही कर रही है तब का आज के काम टाइम में, अभी कर रहे मार्केटिंग में हैं। सब काम ही कर रहे हैं। या दैट्स फनी, बट हाँ। या सो कंक्लूडिंग की क्या क्या हमने पॉडकास्ट में आज डिस्कस किया। फर्स्ट, व्हाट इज पीएसएफ पुणे स्टार्टअप फेस्ट। सेकंड, क्यों सबको ऐसे फेस्ट्स और नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करने चाहिए, irrespective of you being a student, a working professional, a startup founder or an investor. थर्ड, कि हमको क्या फीडबैक्स मिले और हमारे एक्सपीरियंसेस पीएसएफ में क्या क्या इंसिडेंसेस हुए, क्या मजे किए, कैसे लोगों से मिले, क्या क्या अलग अलग स्टार्टअप्स देखे। सो ओवरऑल द 2 days वर वेरी हेक्टिक बट बहुत मजा आया। एंड yeah, so I think uh, that was all about Pune Startup Fest, and we एंड should क्लोवर। and Clover. So yeah, I think we should wrap wrap up this Wrap it up podcast now. here. Yeah. Yeah, definitely, bye bye bye।